એના માટે બધું જરૂરી છે. તો એજ્યુકેશન ઇઝ ધ કી ટુ સક્સેસ, યાની કે આપણે સક્સેસ સુધી પહોંચવા માટે એજ્યુકેશન જે છે એ આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે, ફર્સ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓકે, તો અત્યારે આપણે રમતમાં બધું જતું કરી દઈએ, પણ એજ્યુકેશન જે છે એ જ આપણા માટે આપણી લાઈફ બનાવવા માટે જરૂરી છે. ઠીક છે, તો આજના આવા સરસ મજાના થોટ સાથે આપણે આજના દિવસની શરૂઆત કરીએ. તો ચાલો આપણે લેસન નંબર 3. આપણે લેસન નંબર 2 જે છે એના ક્વેશ્ચન આન્સર લખાઈ ગયા છે, બરાબર, અને મેં તમને લોકોને એની PDF પણ સેન્ડ કરી દીધી છે. તો આપણે લેસન નંબર 3 ની શરૂઆત કરીશું. તો આપણું લેસન નંબર 3 કયું છે? ચાલો કોણ કહેશે? હેલો ગર્લ, હેલો. યસ મેમ. આપણું લેસન નંબર 3 છે અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ. તો અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ, તો એને અંતરિક્ષ પરી શું કરવામાં કહેવામાં આવી છે, અને સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે એ કોણ છે? ચાલો એના વિશે કોઈ પાસે માહિતી છે ખરા? ગર્લ. સુનિતા વિલિયમ એક હા, સુનીતા વિલિયમ્સ એક એસ્ટ્રોનોટ છે. યસ, વેરી ગુડ. સુનિતા વિલિયમ્સ અંતરિક્ષમાં જવા વાળી વ્યક્તિ હા, છે. યસ, વેરી ગુડ. સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે એ અંતરિક્ષમાં જઈ અને રહી અને સફળપૂર્વક તે પાછી ફરેલી છે, એટલા માટે એને અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ કહેવામાં આવે છે. અને તમારામાંથી કોઈને ખબર છે કે સુનીતા વિલિયમ્સ ની પહેલા બીજું કોણ ગયેલું હતું? હેલો. કલ્પના ચાવલા. સુનીતા વિલિયમ્સ, યસ, વેરી ગુડ, કલ્પના ચાવલા. તો કલ્પના ચાવલા જે છે એ અંતરિક્ષ અભિયાન પૂરું કરીને જ્યારે પાછા ફરતા હતા ત્યારે જ તેનું રસ્તામાં તેનું યાન જે છે એ દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થાય છે અને તે પાછા ફરી શકતા નથી. પણ સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે એ એની અંતરિક્ષ યાત્રા પૂર્ણ કરીને પાછી પૃથ્વી ઉપર ફરીને આવેલ છે. તો આપણા ભારતના ટોટલ કેટલા 3 અંતરિક્ષ યાત્રીઓ છે. તો બીજા કોણ છે? હજી એક કોઈ કહેશે? Yes, ma'am. Can you please repeat the હા, question? સુનીતા વિલિયમ્સ, કલ્પના ચાવલા અને એ સિવાય પણ હજી એક કોઈ આપણા દેશનું અંતરિક્ષ યાત્રી રહી ચૂક્યું છે, તો એ કોણ છે? કોઈ કહેશે? ખબર છે બેટા કોઈને? હેલો, કોઈને ખબર છે? રાકેશ શર્મા. વેરી ગુડ, રાકેશ શર્મા. તો આપણા દેશના ટોટલ કેટલા 3 અંતરિક્ષ યાત્રી છે? એક તો સુનીતા વિલિયમ્સ, કલ્પના ચાવલા અને જેન્ટ્સમાં છે રાકેશ શર્મા છે. તો આ 3 જે છે એ ભારત દેશનું નામ ગૌરવ વધારેલું છે કે અંતરિક્ષ ઉપર જઈ અને તેને ખૂબ જ સારા એવા બધી શોધખોળો કરી છે અને આપણા દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. તો તમારે બધાને પણ સુનીતા વિલિયમ્સ જેવું બનવું છે ને ગર્લ?
યસ મેમ. યસ યસ. મેમ. આપણા પરિવારનું, આપણા દેશનું, આપણા સમાજનું નામ રોશન કરવા માટે અને આપણું પણ નામ રોશન થાય એ માટે આપણે બધાએ મહેનત કરવાની છે. જેમ કે આપણા દેશમાં જો ઇન્દિરા ગાંધી રહી ચુક્યા છે, સાનિયા મિર્ઝા, કિરણ બેદી, मल्लिका साराभाई, कल्पना चावला, पीटी उषा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आदि कई ऐसे बड़ी बड़ी महिलाएं रह चुकी हैं जिन्होंने अपने देश का गौरव बढ़ाया है और अपने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है. तो हमें भी ऐसी ही पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन करना है. तो उसके लिए आज से ही मेहनत करनी शुरू कर देनी पड़ेगी, है ना? ओके, तो चलो आज हम लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, ये जो लेसन है उसके लेखक है डॉक्टर कोकिला पारेख. तो डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म जो है वह सन 1954 में गांव उवारसद जिला गांधीनगर में हुआ था. आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी कि पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की है. पीएचडी का मीनिंग क्या होता है? हेलो गर्ल, आप में से कोई बता सकता है पीएचडी? हेलो, पीएचडी यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट पर मास्टरी करना, पीएचडी करना. तो उसे हिंदी में विद्या वाचस्पति कहा जाता है और इंग्लिश में इस डिग्री को पीएचडी बोला जाता है. और ये डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाता है. बाद में ये नहीं कि कोई ऑपरेशन या दवाई देने वाले डॉक्टर, लेकिन आपने जिस भी क्षेत्र में पीएचडी प्राप्त की है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाएगा बाद में. तो आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. यानी कि कोकिला पारेख जो है उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है, तो वो कोई दवाई देने वाली डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी, इसीलिए उसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा गया है. तो उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है और हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है. आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है. तो ये जब बुक लिखी गई थी तब वो अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन अभी तो वो क्या कर रहे इसके बारे में हमें पता नहीं है. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा और लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन और अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पर हमें सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में रहकर क्या क्या काम किया, किस चीज के बारे में उसने खोज की, ये सब हमें यहाँ पर इस लेसन में बताया गया है. यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो सुनीता विलियम्स की तस्वीर है. तो पहले हम इस लेसन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि आजकल महिलाएं जो है वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है पीछे, सभी क्षेत्र में आगे है, पुरुषों की बराबरी कर रही है. तो अंतरिक्ष क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखे हैं. स्त्रियों ने अंतरिक्ष में भी कदम रख लिए हैं. यानी कि महिलाओं में ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी क्षेत्र में वो पीछे रहे. भारत के राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स सफल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रसिद्ध हैं.
सुनीता जो है वो एक भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनके पिता जो है वो डॉक्टर दीपक भाई पंड्या गुजरात से अमेरिका जाकर बस गए थे। तो इसलिए सुनीता पर गुजरात और भारत को भी गर्व है। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 को अमेरिका के ओहो नगर में हुआ था। उनका बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता है। दौड़, तैराकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उसे रुचि रही है। 6 वर्ष की कम उम्र में ही सुनीता ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर से उतरते देखा था और उन्होंने तभी से तय कर लिया था कि मैं भी कुछ ऐसा साहस भरा काम करूंगी। सुनीता ने मैसाचुसेट्स में हाई स्कूल पास कर यूनाइटेड स्टेट नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान के में स्नातक और परास्नातक किया, यानी कि ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। तो 1987 में वे नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी रही। कई तरह के प्रशिक्षणों में सफल होकर वे ऑफिसर इंचार्ज बन गई और बाद में सुनीता की तीव्र इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए वे नासा चली गई और वहां वे अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के दूसरे प्रयास में चुनी गई। 8 साल तक वे वहां पर रहकर उन्होंने बहुत ही कड़ा अभ्यास किया और वह अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार हो गई। सुनीता ने अपने मित्र और सहपाठी माइकल विलियम्स से विवाह किया। तो उसके बाद इसी तरह सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बन गई। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि सुनीता जो है वो तो इंडियन है, तो उसके नाम के आगे विलियम्स कैसे लिखा गया है। तो इस बात का भी यहाँ पर डाउट सोल्व हो जाता है कि सुनीता ने एक अमेरिकन व्यक्ति से विवाह किया था और वे उनका नाम था माइकल विलियम्स। तो इसीलिए सुनीता का नाम जो है वो सुनीता विलियम्स बन गया। उसके बाद 10 दिसंबर 2006 को अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता ने अपने 6 साथियों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी। कौन सी डेट को वो अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी, अंतरिक्ष में पहुंची थी? 2006 और 10 दिसंबर। कितने साथियों के साथ? तो 6 साथियों के साथ। यह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष अड्डा है और पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 दिसंबर को उन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की, यानी कि वो जब 10 दिसंबर को वहां पर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने 17 दिसंबर को वहां पर अंतरिक्ष में कदम रखे। उन्होंने वहां पर 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष में रही और इस दरमियान उन्होंने ह्यूमन लाइफ साइंस के बारे में, यानी कि मानव जीवन विज्ञान के बारे में, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिक विज्ञान और पृथ्वी का निरीक्षण किया। शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर वहां पर रहकर उन्होंने काम किया। तो इस दौरान जमा किए हुए ब्लड सैंपल सुनीता ने न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों तक पहुंचाती रही थी। वहां पर वह रहकर अपने ब्लड सैंपल जो थे वो जो वैज्ञानिक न्यूट्रिशन से संबंधित काम कर रहे थे, तो उन्हीं वैज्ञानिकों तक वह पहुंचाती रही। अंतरिक्ष में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो कैसे कैसे आती हैं? तो अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल होता है और रोज डिब्बा बंद खाना पड़ता है, शरीर का वजन कम हो जाता है और भार उनका वजन जो है वो कम हो जाता है, ऐसा वो फील करते हैं और शरीर का जो लचीलापन तेजी से खत्म होने लगता है और मांसपेशियों और हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अंतरिक्ष में रहना कोई इजी काम नहीं है। फिर भी सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत सुंदर और शानदार दिखाई देती है। वहां से विश्व सीमाओं में बटा हुआ नहीं दिखाई देता,
कितना अच्छा हो यदि पृथ्वीवासी आपस में भेदभाव न रखे और विवादों से दूर रहे। 22 जून 2007 को अंतरिक्ष यान अटलांटिस द्वारा सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ सकुशल धरती पर लौटती हैं और अपनी अंतरिक्ष यात्रा में सुनीता ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। तो 20 सितंबर 2007 को सुनीता विलियम्स जो है वो अहमदाबाद आई और अहमदाबाद आने के बाद सभी लोगों ने यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया। तो हम इस लेसन में ये सब समझेंगे। ओके, तो आज हमने इसे शॉर्ट में समझ लिया है कि हम इस लेसन में क्या क्या समझेंगे, यानी कि इस लेसन का सार समझ लिया है। तो चलो एक बार इस लेसन को अब रीड भी कर लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो चलो कौन रीड करेगा पहले? गर्ल? कौन बेटा, उसका नाम? मिसबा। हाँ ओके। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस सन पृथ्वी पर पहुंचने जैसे उत्तेजना हुई थी, उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरी विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, पर परम की बड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिनिधित्व किया है और सफल होकर हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। मुख्य बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के निवासपन को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात में जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात में मेहसाणा जिला के गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी ओके मिसबा, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा बेटा? मैम क्या नहीं? मैम मैं करूं? मैम आपका मैं नाम बेटा करूँ? पहले पहले कौन बोला था? मैं फातिमा सारानी। हाँ मैम मैं रीड करूँ? सारानी। बेटा एक कोई भी एक बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो मुझे कैसे सुनाई देगा? मैम मैं रीड करूँ? हाँ तुम्हारा नाम बेटा? शिफा। शिफा। तुम्हारे पहले कौन बोला था शिफा? मैम मैंने कहा था हाँ तुम्हारा नाम बेटा? फातिमा सारानी। सारा ने फातिमा। ओके, सारा ने फातिमा के बाद शिफा।
तुम रीड करना, ओके बेटा। फातिमा चलो रीड करो। ओके। गुजरात में बिताई, अहमदा में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्माउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युगोस्लावियन युवती से शादी युवती की। से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। सुनीता का ओके जन्म 19 बेटा, वेरी गुड। ओके शिफा, शिफा सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओगो, अमेरिका में हुआ था। मुक्त ओहो वातावरण में पली सुनीता में साहसिक बुद्धियां अबर की। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, आप मैम ये क्या है? स्विमिंग के बाद घुड़दौड़, घुड़दौड़, बाइकिंग, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, तमीरा जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वह धनुर्विद्या मेहनती जैसे थी। साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल हम्म, की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में हम्म, निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना। बचपन का संकल्प उसने साकार दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा में मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंटेल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए झूठी कहा, जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियां का महत्व था। ओके वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन रीड करेगा बेटा? गर्ल्स जब बोलती है सब एक साथ में बोलती है, करते हैं ना ऐसा। हेलो, चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? सारा। Ma'am, I read. कौन बेटा? Mubashira. मुबशिरा, हाँ ओके। हाँ मुबशिरा, चलो रीड करो बेटा। हेलो, सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यानी माइकल विलियम्स वहां पर नहीं पहुंचे थे, ऊपर के पैराग्राफ से। इसके बाद नेवी में
इसके बाद नेवी ने एवियंस ट्रेनिंग अमेरिका में कमिश्नर अधिकारी बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद लिया। पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की त्रिव अच्छी थी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। वह 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं और अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? तारा। हेलो हेलो गर्ल। मैम काफी रीड करवाना। क्यों पता नहीं बेटा? मैम हमारा सुनीता ने ट्रेन के खास निकला। सुनीता ने खास मित्र और सह हाँ अध्यायी। मैम वो रीड करूँ? कौन बेटा? आयशा। हाँ ओके। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विली, विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता को सिद्धि के साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष पर बनाने में कल्पना चावला ने भी प्रेरणास्रोत का काम किया है। पिछले 8 प्रेरणा वर्षों स्रोत का में काम किया है। प्रेरणा स्रोत का काम किया है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। ओके, वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? गर्ल। मैम मैं करूँ? आपका नाम बेटा? मरियम। मरियम। ओके। जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है। खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है। लौटने में मुश्किल होती है। आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है। हड्डियाँ कमजोर हो जाती है। दिमाग तैयार होने में समय लगता है। सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर
अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें गोताखोरी में अनुभव होने वाला भारहीनता से स्पेसवॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियां और मुश्किलों के बारे में जाना। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी। Wait a minute, 1 minute. Okay. तैयार हो चुकी थी। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? गर्ल, हेलो हेलो गर्ल, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? मैम कैन आई रीड? आपका नाम बेटा? मैम कैन आई रीड? फातिमा। आपका नाम? फातिमा। ओके। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर में फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी की पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27744 किलोमीटर थी। 27,744। यह प्रतिदिन पृथ्वी की मैम क्या है वो? यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 70 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले अप्रैल माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे की शेनॉन ल्यूस का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है ताकि मांसपेशियां और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सकती है।
शरीर को लचीला बनाए रखे जाए, जैसे कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, परहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डी को तेज गति जैसी समस्याएं थी। जैसी समस्याएं थी। ओके, तो चलो अब आगे का लेसन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे और समझेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। ओके।